Good evening, everyone. Welcome to today's session of NutriLift 360. I'm Ruchita, your host, and today we are going to understand our body clock. We'll answer questions like what is circadian rhythm? How does the timing of our meals or our sleep impact our health? And very importantly, why do we need hydration? Join in to listen to the experts who have walked the talk and can help you make the right choices. To start the session, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. You know, we have made many recommendations on this community. And one of the most important recommendation is to follow circadian rhythm. Now, circadian rhythm is a fancy word. Some of you understand it, some of you don't understand it. But all it means basically is that please finish your dinner by 6:30, okay, if you're in India. And it is such a simple thing to do, but it has got unbelievable results. Just make one change, okay, in your health journey, and you will notice that it will have a huge impact on your overall health. The worst thing you can do is to have a late night dinner and then go to sleep. This is where all your lifestyle problems catch up with you. So if you can just make one small change, okay, finish your dinner by 6:30 in the evening, then don't have anything, till the next day breakfast, you will be in a very, very, safe zone. Also, today we're going to be talking about hydration. Summer is, here to stay for some time now. And it's very important and very critical to ensure that you drink water before you feel thirsty. If you're drinking water when you feel thirsty, means you're already too late, you are dehydrating. It is extremely important to ensure that while you're hydrating, you can also add a little bit of salt to it. Because while you're sweating, you will start to, your body will start to lose a lot of salts. If, your body requires very small quantities of salt, but that salt is extremely important. I like this beautiful concept of having chas, with a little bit of salt in it. Especially nowadays, we get this really nice, Himalayan pink salt, and it ensures that the connectivity in your body, is very well maintained. So I hope, you get something from today's session. Today, you are very fortunate because you're going to be learning from Manoj. Manoj, before he joined this community, was in the three-figure zone. After he started, learning several things, today he is mentoring a lot of people in his organization of how to remain healthy. He's somebody who has walked the talk. He's dropped more than 30 kilos in weight, and his before and after pictures are truly unbelievable. So listen to him very carefully, because what you're seeing impact not only on your health, but the health of your friends and family around you. Over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. And I, as always, say कि इस ग्रुप में और स्पेशली मैं जो भी हैं आपके बदौलत हैं, जहाँ तक हेल्थ का सवाल है सबसे पहले, और ऑब्वियसली फाइनेंस के ऊपर भी हम आपसे सीख ही रहे हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, अगर हम आज की बात करें तो मैं स्लाइड शेयर कर दूं. रुचिता, मुझे बताइएगा, इज इट विजिबल? और ओके, थैंक यू वेरी मच. तो आज का, जैसे कि आपको पता है, सर्काडियन रिदम और हाइड्रेशन. सर्काडियन रिदम
अगर आप रिदम को समझते होंगे तो सर्काडियन आपको सिर्फ समझना है। रिदम मतलब लय में, है ना। हर चीज़ लय में चलती रहे तो बड़ी अच्छी लगती है, और कोई चीज़ अगर लय में नहीं चले तो बड़ी अजीब लगती है, कानों को बेकार लगता है और सुनने की इच्छा नहीं होती है। सर्काडियन मतलब ये कि हमारे शरीर के अलग अलग रंगों के, अलग अलग ऑर्गन्स के, अंगों के काम करने का समय, कि कौन से समय पे कौन सा अंग क्या काम कर रहा है, कौन से समय पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा एंजाइम रिलीज ज़्यादा हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपने शरीर के साथ रहें। रहें का मतलब ये है कि हम जो भी काम करते हैं दिन भर में, भले वो फिर एक्सरसाइज हो, सोना हो, खाना हो, जागना हो, घूमना हो, ये सारी चीज़ें अगर हमने उसके साथ सिंक करके करी, हमारे ऑर्गन्स के रिदम के साथ, तो रिजल्ट जो है वो अल्टीमेट है। और अल्टीमेट हेल्थ रिजल्ट का मतलब है कि बेस्ट ऑफ द हेल्थ और बेस्ट ऑफ द फिटनेस। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आज की बात क्या क्या है। आपको जैसे कि हम बार बार यहाँ कहते ही हैं कि खाने के बारे में आपको स्पेशली 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। आज हम जो बात करेंगे सर्काडियन रिदम की, ये कब से ताल्लुक़ रखता है। कब मतलब समय से ताल्लुक़ रखता है, किस समय खाना है। ओके, और आपको भी जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके अंगों के हिसाब से अगर आपने सारा काम किया और वो सिंक रहा आपका काम और आपके अंगों का काम करने का समय, तो रिजल्ट अल्टीमेट रहने वाला है। तो उसी तरह से अगर सही टाइम पे खाना खाया तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पहले हम समझ लें कि किस तरह से हमारा शरीर अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करता है। अगर आप देखें तो रात के 2 बजे से, अगर आप यहाँ पर जो 12 बजे से चालू है तो रात के 12 बजे है, और जो राइट साइड में एक्सट्रीम जो है और अगले रात के 12 बजे है। ये 24 घंटे का पूरा साइकिल दिया गया है। रात के 2 बजे अगर आप देखेंगे जो फोटो दिया है, तो हमारा बॉडी गहरी नींद की स्थिति में रहने के लिए तैयार है। गहरी नींद की स्थिति में अब इमेजिन करिए, शरीर जो काम कर रहा है वो गहरी नींद में रहने के लिए काम कर रहा है, और हम जाग रहे हैं तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, और ये सिंक नहीं होगा। आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर कोई बैलगाड़ी है, उसमें 2 बैल लगे हैं, एक बैल सोने के चक्कर में है, दूसरा बैल बोलता है नहीं मुझे चलना है, उस बैलगाड़ी का क्या हालत होगा आप वो समझ जाइए। ओके, 4:30 बजे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है सबसे लोएस्ट होता है। 6:45 बजे हमारे बीपी में हल्का सा उछाल आता है, क्योंकि अभी हमें काम करने के लिए बॉडी तैयार कर रही है। क्योंकि जब भी हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहता है, जब हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली है, जब बॉडी काम करेगी तो ऑब्वियसली आपके दिल की धड़कनें बढ़ेगी और थोड़ा आपका बीपी बढ़ेगा। 7:30 बजे मेटाबॉलिज्म थोड़ा ऊपर जाने लगता है। मेटाबॉलिज्म का काम सॉरी मेलाटोनिन नीचे आने लगता है और आपका मेटाबॉलिज्म के लिए काम ऊपर जाने लगता है। 8:30 बजे से आपका पेट डाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो इसको और अच्छी तरह से हम यहाँ समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने राइट साइड में दिया है रेस्टिंग फेज जो कि रात का टाइम है, और लेफ्ट साइड में दिया है जो वाइट साइड है जिसको बोलते हैं हम एक्टिव फेज, जब आपने काम करना है ना। तो अगर रात का टाइम अगर आप देखेंगे तो उसके साइड में कुछ सर्कल्स भी दिए हैं, हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल बना हुआ है। तो जो सबसे राइट में अगर आप देखेंगे तो मेलाटोनिन है जो कि ब्लू कलर का है ना। मेलाटोनिन काम क्या करता है? मेलाटोनिन काम करता है आपको सुलाने का। मेलाटोनिन को टाइम पे सिक्रीशन बढ़ता है बॉडी के अंदर, जिसके वजह से आपको नींद आती है, आपको नींद आना चाहिए, सोना चाहिए आपको। ओके, और जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं, FGF21 को देखेंगे आप येलो कलर में, तो ये जो है ये आपके डाइजेस्टिव के लिए काम करता है, ये आपके डाइजेशन के लिए काम करता है, ये आपके बॉडी रिपेयर के लिए काम करता है। तो कहने का मतलब अभी ये है कि इस वक्त में आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, अभी आप खाना खाने के लिए तैयार होंगे। उसी वक्त आप FGF21 के ऊपर से आप देखेंगे तो यह कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये मेलाटोनिन का उल्टा है। कॉर्टिसोल अभी आपको जगाने के लिए तैयार कर रहा है, ये आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन को थोड़ा एक्टिवेट करता है, क्योंकि अभी आप फटाफट कुछ ना कुछ काम करोगे उठने के बाद। लेकिन बॉडी आपको तैयार कर रही है इसके लिए, फटाफट काम करने के लिए, और आप सोए पड़े हैं। सोचिए क्या होगा।
ओके, उसी के ऊपर आप देखेंगे ग्रेलिन है। ग्रेलिन क्या करता है? ग्रेलिन आपके भूख बढ़ा रहा है, बोलता है उठिए अभी आपको खाना है, और हम सोए पड़े हैं या फिर सुबह नहीं खा रहे हैं कुछ भी। फिर आप इस तरफ आ जाइए, है ना, लाइट ब्लू में। लाइट ब्लू में जो आएगा ये आपको दिखेगा एडी पॉटिंग, ये आपके डाइजेस्टिव हार्मोन्स है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बनता है। उसी तरह से आप एक ग्रीन कलर का आप देखेंगे तो ये ग्रेलिन है, ये आपके हंगर हार्मोन को, सॉरी ग्रेलिन नहीं है, ये आपका ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में इंसुलिन है। सॉरी, ये इंसुलिन आपको किस लिए काम आता है? क्योंकि आपने जो खाना खाया है सुबह से, उसको जो अभी आपने डाइजेस्ट किया है, डाइजेस्ट करने के बाद अब उसको मेटाबोलाइज करके उसकी जो एनर्जी है, जो शुगर में कन्वर्ट हो चुकी है, जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, उसे अब हर सेल तक ले जाने की जवाबदारी इंसुलिन की है। इस तरह से आप दिन भर में काम करते रहना चाहिए, जिस तरह से आपकी बॉडी बनी है। ये रहा मेलाटोनिन जो आपके सोने को बढ़ाता है, ये रहा FGF21 जो आपके कार्बोलिपिड को मेटाबोलाइज करता है, ओके। ये रहा ग्रिलिन, तो सॉरी कॉर्टिसोल जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है। ये रहा हंगर हार्मोन को बढ़ाने वाला ग्रिलिन जो आपके भूख को बढ़ाएगा, ओके। ये इंसुलिन जो आपके ब्लड शुगर के लेवल को मॉनिटर करेगा या फिर उसको रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करेगा कैसे करेगा? अगर आपने खाना खाया, उसके जो शुगर है, उस शुगर से जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो एनर्जी को हर ब्लड के सेल, हर सेल तक ले जाने की जवाबदारी इसकी है, ओके। और ये रहा जो आपका एडिपेनिन जो प्रोटीन हार्मोन को रेगुलेट करता है, और ये रहा लेप्टिन जो बोलता है बस खाना मत खाइए, आप अभी फुल हो चुके हैं। तो ग्रेलिन और लेप्टिन ये दोनों एक अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। तो जब इस तरह से हमारा बॉडी चल रहा है, तो अगर हम उसी तरह से हम अपने आप को भी बॉडी के ऑर्गन के साथ में चलाएं, तो ऑब्वियसली है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों नहीं हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अगर जिस तरह से आपकी बॉडी चल रही है या बॉडी के ऑर्गन चल रहे हैं, जो सर्काडियन रिदम है, वो अगर आप उसी तरह से चलोगे तो क्या होगा? और उसी तरह से चलोगे तो आपका भूख रेगुलेट रहेगा, आपका स्लीप एक सोने का और उठने का समय सही तरीके से सेट हो जाएगा, आपके हार्मोन्स लेवल सही रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा? जब हार्मोन्स लेवल बढ़ रहे हैं उस वक्त आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बड़े हुए पड़े वेस्ट हो रहा है। उसी तरह से अगर आपने अगर समझो अगर आपने जिस तरह से आपका सर्काडियन रिदम में आपके बॉडी क्लॉक चल रहा है, ऑर्गन के क्लॉक चल रहे हैं, उस तरह से आप नहीं चले तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको फैटी लिवर हो जाएगा, आपको ओबेसिटी होगा, आपको इन्फ्लेमेशन होगा, आपको कार्डियक वास्कुलर डिजीज़ होगा, डिप्रेशन होगा। इधर 6 बीमारियाँ लिखी हैं। मुझे याद है जब मैं 2014 में 114 किलो का था, और 200 उस वक्त डॉक्टर ने जब मुझे मेडिकल, जब हम रूटीन चेकअप के लिए जाते थे उस वक्त, अभी भी जाते हैं, तो उस वक्त जब गए थे तो उस वक्त डॉक्टर ने बोला था कि मनोज तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको ये तकरीबन उसने 8-10 बीमारियों के नाम लिख लिए थे, आपको ये सब हो सकता है। मैं बोला तो फिर करना क्या चाहिए? आप सोचकर सरप्राइज हो जाएगा देखो किस तरह से इंडस्ट्री चलती है। उन्होंने कहा कि एक सर्जरी है बैरेट्रिक सर्जरी। बैरेट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं, आपके ये जो बीच का पार्ट है टमी का, उसका ऊपर के स्किन को काट के उसके नीचे के जो फैट होता है उसको साइड में करके, फिर जो आपका जो एक्चुअल स्टमक होता है, एक्चुअल पेट जो होता है, उसको फोल्ड करके उस पर स्टेपल मार देते हैं, मतलब आपके पेट का साइज छोटा कर देते हैं। बराबर है, ये उनका तरीका है ताकि आप खाना कम खाओ। और जब आप खाना कम खाओगे तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि साथ में आपका न्यूट्रिशंस, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी आपके शरीर में कम हो जाएगा, ये उन्होंने नहीं बताया था। और जब मैं उस ऑपरेशन के लिए राज़ी हो गया था तब उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप 140 के हो जाओगे तब करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 114 किलो पे मैं था,
और उसने मुझे बोला था कि 140 किलो के जब आप हो जाओगे तब इसे करेंगे, और मैं बेझिझक हो गया था। मैं बोला अब तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास मोटापे का इलाज है। और इसीलिए 2014 में जब मैं 114 किलो का था, 2015 में मैं 120 किलो का हो गया। ये 6 बीमारियां, शायद इतनों से आपकी आँख खुल जानी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, आप ये देखिए कि हमें जिस तरह से बॉडी को बनाया है, इंसानी बॉडी को, उस तरह से हमें काम करना चाहिए। हमें सिर्फ जब तक सूर्योदय और सूर्यास्त, इस 2 पीरियड के बीच में ही हमें खाना चाहिए। मतलब जब तक उजाला है, जब तक सूरज है बाहर, तब तक हमें खाना चाहिए। अंधेरा हो गया आपको बंद कर देना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि इंसुलिन तभी ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब सूरज बाहर है। अगर आपने सबसे सर्काडियन रिदम वाले जो स्लाइड में आपने देखा होगा, इंसुलिन आपका डे में निकलता है, रात में ज़्यादा वो सिक्रेट नहीं करता। ओके, इसीलिए फिर आपको अगर इंसुलिन, अगर आपने खाना खाया, इंसुलिन बराबर काम किया तो ठीक होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो जो आपने खाना खाया है वही एनर्जी जब फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके शरीर में रह जाएगी, और उससे क्या होगा, आपके शरीर में फैट आएगा, वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा जो बहुत सारी बीमारियां हैं, 8-10 बीमारियां कोई भी आ सकती है आपको, कोई भी एक पहले आएगी, उसके बाद फिर बाकी आते रहेंगे, है ना। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल एक एग्जांपल है कि आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि सुबह 7 से लेकर रात के 7 के बीच में आप जो खाना वो खाइए, है ना। और जैसे रात हो जाती है आप उसको स्टॉप करिए। हाँ, कई और प्रॉब्लम आएंगी आपको कि रात को भूख लग रही है तो क्या करें, उसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तो खाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी आपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको आप 7, 8 या अगर 9 बजे भी पकड़ता हूँ, अगर आज की डेट में अगर आप 9 बजे खा रहे हैं तो अगला मील आप दूसरे दिन सुबह 8 या 9 बजे के आसपास खाओगे, तो 12 घंटा आपके पेट में कुछ नहीं है। ओके, रात को जो भी आपने खाया है आपके बॉडी में है, आपके बॉडी से पता नहीं डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, कितना क्या हुआ, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन 12 घंटा आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने कुछ नहीं खाया है, बॉडी के अंदर कुछ नहीं डाला है। उसके बाद आपको बहुत सारे काम भी करने हैं सुबह उठने के बाद, है ना। तो अगर आप नहीं खाओगे तो जैसे कि आपको पता है कि सुबह सुबह बहुत सारे हार्मोन है, भूख के हार्मोन आ रहा है, इंसुलिन सिक्रेट हो रहा, तो सब वेस्ट हो रहा। तो आपने क्या करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट खाना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होंगे। हंगर हार्मोन, जैसे कि हमने आपको बताया कि गर्लिन, ये वो टाइम पे एक्टिव रहता है तो आपको सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि आपको खाना चाहिए। जब आपका शरीर बोल रहा है खाने के लिए तो वो टाइम पे तो खाना ही चाहिए आपको। ओके, आपका ब्लड शुगर लेवल पे रहेगा, क्योंकि इंसुलिन बराबर काम कर रहा है, आपने खाया, इंसुलिन है बराबर अपना काम कर रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह से देखा गया है कि 80% पीपल अगर जब ये सुबह का खाना बराबर से खाते हैं और उसके बाद के बाकी का भी, तो उनका वजन नहीं खाने वालों की अपेक्षा में 13 किलो कम रहता है। इसका मतलब ये कि आप सुबह का टाइम पे खाना खाएंगे, सुबह अच्छा से खा लेंगे, तो चांसेस है कि आपका नेचुरली 13 किलो वजन कम रहेगा। ओके, मेरे केस में क्या था, मेरे केस में ये था कि मैं रात को तो 2 बजे घर पहुंचता था, तो उसके बाद खाना गर्म करता था, फिर खाता था। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास में खाना खाता था दबा के, क्योंकि दिन भर क्या है मालूम है, हम सेल्स वाले थे, फील्ड में थे, खाना मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। उस पीरियड में मैं 2 वड़ा पाव एवरेज पर डे खाता ही था, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जब सुबह आप 8 बजे घर से निकले हो, रात को 2 बजे आना है, अगर आप एक टाइम का खाना भी अगर आप साथ में ले जा रहे हो, बाकी टाइम पे क्या करोगे। और हम क्योंकि फील्ड में रहते थे, टाइम कम मिलता था, तो क्या करना है, अपने फास्ट फूड। और उस वक्त फास्ट फूड क्या था हमारे टाइम पे, वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव। ओके, जिसके वजह से हमारा वजन बड़ा होगा, ये हमें पता नहीं चला वो टाइम पे कि क्यों है। अगर पता होता तो शायद वो काम नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुबह उठने के बाद तकरीबन 2 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ खा लें। 2 घंटा, क्योंकि देखो इंसुलिन बन रहा है, आप खाओगे, डाइजेस्ट भी होगा, उसका शुगर यूज भी होगा। अब आते हैं बात लंच की। कई लोग ये सोचते हैं कि सुबह हमने नाश्ता अगर दबा के कर लिया तो रात को, दोपहर को खाना खाने की जरूरत नहीं है, अब रात को ही देखा जाएगा। ये रात को ही देखा जाएगा वाला हिसाब कहाँ से आता है, क्योंकि हम दोपहर का लंच नहीं करते। हमें दोपहर का लंच अच्छी तरह से करना चाहिए।
देखो जैसे कि हम बार बार बताते हैं, है ना, 3 मील हम खाते हैं अगर आप मोटा मोटी देखा जाए तो। सुबह का ब्रेकफास्ट, बाद में का लंच और उसके बाद का डिनर। ब्रेकफास्ट के बाद हम काम ज़्यादा करते हैं, लंच के बाद भी काम करते हैं, और डिनर के बाद तो वैसे भी हम काम, हमारी बॉडी ज़्यादा काम करती नहीं, तो कैलोरी की तो वैसे भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये 3 फिंगर को आप याद रखेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो आपको पता चलेगा ज़्यादा कौन सा खाना है, कम कौन सा खाना है ना। तो इससे आप लंच को स्किप मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि लंच स्किप करोगे तो फिर आपका डिनर हैवी होने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो लंच को स्किप नहीं करिए, और डिनर को आप 3-4 चीज़ें ध्यान में रखिए। जैसे कि हमने कहा कि 7 बजे के पहले खा लो। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट रात को मत खाइए। आप ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन वाली चीज़ों को रात को खाएंगे तो क्या होगा कि जो ज़रूरी चीज़ें आपके बॉडी को चाहिए वो मिल जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रात को, क्योंकि रात को आपने काम नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा कैलोरी देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है। एनर्जी की रात को आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। और वैसे भी रात को हम ज़्यादा इंसुलिन नहीं, हमारा शरीर में ज़्यादा पैदा नहीं करता, तो हम ज़्यादा कैलोरी डाल के करेंगे क्या उसका, ना हमको यूज़ होगा, ना हमारे सेल यूज़ कर पाएंगे। तो शुगर बन के हमारे ब्लड में घूमता रहेगा, और फिर दूसरे दिन सुबह आप देखोगे तो आप देखोगे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ। इसको आपको अवॉइड करना है। लाइट का डिनर लाइट रखिए, प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा रखिए। सोने से हो सके 2 से 3 घंटा पहले खा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो क्या होगा मालूम है। सपोज आपने, अगर आप नहीं सोओगे तो क्या होगा। सपोज मानिए कि आपने हमारी बात मान ली और 7 बजे खाना चालू कर दिया, लेकिन आपने सोने का टाइम वही 12 बजे रखा, जो कि गलत है, क्योंकि सर्काडियन रिदम बोलता है कि आप 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाइए। अगर नहीं सोए आप तो ऑब्वियसली है 3-4 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगने लगेगी, और फिर आप कोई कचरा खाना चालू करोगे। कचरा इन द सेंस अनहेल्दी फूड, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सब चीज़ टाइम पे, ओके। तो ये रही बात खाने की। अब आते हैं हमारी बात, जो सेकंड आज हमारा टॉपिक है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी में पानी की मात्रा प्रॉपर रखना, है ना। जितना हमारे बॉडी के अंदर पानी होना चाहिए उतना पानी की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर रखना, यह हाइड्रेशन है। अगर आप देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कितना % पानी है, तो इट इज़ अराउंड 60 to 70% हमारे शरीर के अंदर पानी होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारे ज़िंदगी के सभी फेज़ के अंदर पानी की क्वांटिटी सेम रहती है परसेंटेज वाइज, बिल्कुल नहीं। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लिखा है बर्थ के टाइम पे आपके बॉडी के अंदर 78% के आसपास पानी रहता है। जैसे आप 1 साल तक बच्चे की उम्र होती है, वो 78-65% हो जाता है, और जब तक हम एडल्ट होते हैं तो ये वुमेन के अंदर 55% और एडल्ट मैन के अंदर 60% के आसपास हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एडल्ट मैन के अंदर 60% अगर पानी है तो शरीर के हर हिस्से में 60% होगा, बिल्कुल नहीं। शरीर के हर हिस्से के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर अलग अलग परसेंटेज में पानी की मात्रा होती है। जैसे ब्रेन और हार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 73% पानी होता है, लंग्स में 83%, किडनी में अराउंड 79, मसल में भी 79, बोन के अंदर 31%, और जो हमारी स्किन है इसके अंदर तकरीबन 64% पानी होता है, ओके। तो इसलिए हमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब आते हैं कि पानी की हमारे शरीर को ज़रूरत क्यों होती है। कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमने कहा कि आपकी आँखों को आंसू आते हैं, उसके लिए भी पानी लगती है। आप पलकें झपकाते हो क्योंकि वहाँ मॉइस्ट, थोड़ा वहाँ गीलापन है, इसलिए आप आँखें पलका देते हो। इमेजिन करिए कि आपकी आँखें एकदम सूख जाएं, आप पलकें नहीं झपका पाओगे, ओके। आपके नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, इसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आपका पानी डिहाइड्रेशन हो आपके बॉडी के अंदर तो आप देखेंगे आपका सलाइवा एकदम गाढ़ा और एकदम स्टिकी हो जाएगा, ओके। ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ओके। ये आपके ऑर्गन्स और आपके टिश्यूज़ को बचाता है। ये और एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम करता है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। इमेजिन करिए कि आपने खाना खाया, सिर्फ ड्राई खाना खाया, आपके शरीर के अंदर पानी बिल्कुल नहीं गया। अब क्या होगा, आपने डाइजेस्ट किया, मेटाबॉलाइज करने के लिए जब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा हमारा सिस्टम, लेकिन एब्जॉर्ब वो ड्राई चीज़ को नहीं करता,
उसको लिक्विड फॉर्म पे वो एब्जॉर्ब करता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स को लिक्विड फॉर्म में करेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में पानी ही नहीं है तो क्या होगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो सारे न्यूट्रिएंट्स फिर आपके फ्लश आउट हो जाएंगे, जिससे आपका वो नुकसान हो गया। मतलब आपने खाना तो खाया लेकिन आपके शरीर को मिला नहीं। ओके, पानी अच्छे से पियोगे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ओके, ये ऑक्सीजन को सप्लाई शरीर के हर पार्ट में सप्लाई करने का काम करता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन भी जो बनता है उसके अंदर भी पानी है। ओके, ये आपके जॉइंट के मूव को, जो हमारा जॉइंट है, हर जॉइंट है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए भी थोड़ा उसको यूज होता है। ओके, ये हमारे सेल को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने के भी काम आता है। किस तरह से मैं आपको आगे बताऊंगा आगे वाले सेल में। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रेटेड सेल है जो एकदम परफेक्ट राउंड फिगर में है, और एक डिहाइड्रेटेड सेल है जो एकदम अचका पचका हुआ है। इसका मतलब किशमिश जैसा है ना। डिहाइड्रेटेड सेल किशमिश जैसा है, और ये जो हाइड्रेटेड सेल है, एज्यूम करिए कि आपने किशमिश को पानी में भिगा दिया 1-2 घंटे, तो किस तरह से एकदम फूल जाता है वो, एकदम उस तरह से ये रहता है। आप इमेजिन करिए, अगर आपके सेल के अंदर पानी ही नहीं है और आपने पानी पिया तो क्या होगा? पहले सेल अपनी पूर्ति करेगा, पहले बोलेगा मुझे पानी चाहिए, बाकी बात बाद में, बराबर है। तो सबसे पहले पानी तो खुद ले लेगा ना, होगा क्या उससे? वो सिर्फ पानी ही लेगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा। पानी का 2 काम है, न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर ले जाना और वहां पर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको साथ में बाहर ले आना। लेकिन पहला काम, अगर आपका ड्राई डिहाइड्रेटेड सेल है ना, सेल की बात हम क्यों करते हैं, पहला सेल समझा दूं आपको। सेल इसलिए क्योंकि सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। जिस तरह से आपके घर का सबसे छोटा हिस्सा ईंट है, और आपकी अपने सारी ईंटों को आपने सही सलामत रखा, तो आपकी बिल्डिंग, आपका घर हमेशा मजबूत रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। लेकिन इमेजिन करिए, अगर रोज एक एक ईंट आप निकालते रहे, या फिर आपका एक एक ईंट, आपका एक एक सेल अगर शरीर का खराब होते रहा, तो आप बीमार पड़ जाओगे, उसी तरह से आपका घर गिर जाएगा। ओके, तो इसलिए अगर आप सिंपल टर्म्स में समझें कि आपके सेल को या आपके ईंट को, घर के, अगर आपने उसको मजबूत रखा तो आपके घर को कुछ नहीं होगा, या फिर आपके सेल को आपने मजबूत रखा तो आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। आपने 80-90% अपने शरीर को एकदम बचा लिया है ना। अब क्या होगा, अगर डिहाइड्रेटेड सेल है तो क्या करेगा? सबसे पहले जो भी पानी आएगा पहले अपने अंदर ले लेगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा, बोले मुझे पानी की जरूरत और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद पानी अंदर ले लिया, अब वो बाहर फ्लश आउट भी नहीं करेगा जल्दी। क्यों? वो तो बोले मुझे पानी चाहिए पहले, मैं तो अपने पास रखूंगा, बाहर नहीं भेजूंगा। लेकिन वहीं पर अगर हाइड्रेटेड सेल हुआ, मतलब वो सेल जिसके अंदर पानी पहले से ही मौजूद है और उसके सूखने से पहले आपने पानी पी लिया, तो क्या करेगा? उसमें से उसको मालूम है कि पानी अभी आने ही वाला है, पानी अंदर आएगा, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा, और जो अंदर का जो वेस्ट है उसके साथ में पानी बाहर आएगा और वो वेस्ट मटेरियल को लेके जाएगा। इसीलिए हाइड्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की वजह से जो सूखापन होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है? आपको प्यास लगती है, ये तो सबसे सिंपल है। लेकिन कहा जाता है कि प्यास लगने से पहले आपको पानी पीना चाहिए। कुआं तभी खोदना नहीं चाहिए जब आपको प्यास लगे, कुआं पहले से खोद के रखना है। उसी तरह से पानी पीते रहना चाहिए आपको, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, आपको थकान सी महसूस होगी, ये मेरे साथ होता है। डिहाइड्रेटेड हुआ, मुझे फटीग जल्दी आएगी, और मैं तुरंत पानी पी लूँ एकदम तरोताजा हो जाता हूँ। मसल क्रैम्प हो सकता है आपको, आपकी यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाएगा, आपको हीट स्ट्रोक लग सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपका मुंह सूखेगा और आपके मुंह का जो सलाइवा है, जो थूक है, वो एकदम गाढ़ा और स्टिकी हो जाएगा। आपकी आई का ट्विचिंग होगा, ट्विचिंग इन द सेंस खुजली आ सकती है। ओके, ड्राई एंड सनकन आइज हो सकता है। ड्राई मतलब आपकी आंखें सूखी हो सकती हैं और आंखों के नीचे गड्ढे पड़ सकते हैं, कुछ फुला हुआ फिर गड्ढा ऐसा हो सकता है। आपके हार्ट रेट बढ़ सकता है। ओके, आपको किसी किसी को सर दर्द भी होता है, ये मेरी वाइफ के साथ है। ओके, और इरिटेबल होता है, एकदम झंझनाहट होती है, मतलब खिंच आने लगती है, परेशानी होने लगती है, समझ में नहीं आता क्या करें प्यास लगने से किसी किसी को। तो आप पीते रहिए पानी, है ना। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपको कभी भी हो सकता है, ज्यादा करके रात को होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको लगी है भूख, लेकिन वो भूख नहीं होती, वो प्यास होता है। उसका कारण ये है
कि ये भूख और प्यास को रेगुलेट करने वाला जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये सिर्फ सिग्नल भेजता है कि कुछ दो। हमें क्लियर नहीं होता कि हमें उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए या खाना चाहिए। अगर वो ऑड टाइम है तो आप ये समझ जाओ कि वो सिर्फ पानी ही मांग रहा है। तो आपने उस वक्त क्या करना है, आपने पहले पानी पीना है। पानी पी के 20-25 मिनट देखिए, फिर अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आपको लगता है कि फिर आपको लगेगा कि हाँ शायद भूख होगा, तो उस वक्त कुछ आप हेल्दी चीज़ खाइए, है ना। आप एक फ्रूट खा सकते हो, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप प्रोटीन पाउडर पी सकते हो जो हमारा है ना, न्यूट्रीलाइट का, वो पी सकते हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा भूख लगी, आपको पता नहीं चलेगा प्यास लगी है, आपने भूख लगा, आपने कुछ भी खा लिया, इससे आपका ओवर ईटिंग होगा, उसकी वजह से वेट गेन होगा, और पानी चाहिए था आपने खाना दे दिया, तो जो डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा हो गया आपको, है ना। इस तरह से ये हो सकता है। तो आपको ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि पहले आप पानी पी के देखिए 15-20-25 मिनट तक क्या हो रहा है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आप फिर कुछ चीज़ें कुछ फ्रूट खा लो, या तो फिर कुछ नारियल पानी पी लो, या तो फिर आप छाछ पी लो। ये भी अच्छी चीज़ है आज के डेट में, जैसे फ़ारूक ने बताया था। या फिर आप क्या कहते हैं, प्रोटीन पी जाओ। ओके, ये आप कर सकते हैं। आप अपने साथ में हमेशा बॉटल रख सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा अपने साथ में बॉटल रखता हूँ, पानी की 3 लीटर बॉटल, 3 बॉटल पानी की, 3 सुबह-सुबह भर देता हूँ मैं, और दिन भर उसी को पीता रहता हूँ। ओके, आप ये देखिए कि आप ज़बरदस्ती ज़्यादा ना खाएं, आप माइंडफुल ईटिंग करें। ठीक है, और आपके यूरिन के कलर को देखें, जैसे आपको लगे कि ये डार्क हो रहा है, आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। कितना पानी पीना चाहिए एक ने, है ना। ये एक बहुत, वो कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन के अंदर उनका सवाल पूछा जाता है कि किसी ने कितना पानी पीना चाहिए। यहाँ पे एक रेंज दिया गया है, एक मोटा मोटी अगर कहा जाए तो 8 से 12 ग्लास, 200 ml का एक गिलास गिना जाता है। तो आप देखेंगे तो 1.25 लीटर से लेके 2 लीटर दिखाता है। बट अगर जब आपको ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है तो ये आपके बॉडी के साइज़ के ऊपर है कि कितने किलो के आप हैं, है ना, उसके ऊपर से। तो 32 ml से 58 ml पर केजी अगर ये है मेल के लिए। अगर मैं मेरे लिए देखता हूँ तो मुझे ये, अगर मैं इसका एवरेज लेता हूँ तो एवरेज आता है अप्रोक्सीमेटली 45 ml पर लीटर। तो मुझे तकरीबन 3 लीटर ही लगता है, और इसीलिए मैं 3 लीटर के आसपास पानी पीता हूँ। जो वुमेंस के लिए है, वुमेंस के लिए 27 से 52, अगर आप उसका एवरेज निकालें तो इट इज़ अराउंड 40 ml पर केजी। अगर आप 60 किलो के हैं तो अराउंड 2.5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पानी के इंटेक को ट्रैक करना है। ईट योर वाटर, ये क्या बात है, जल खाबो, ये तो गुजराती बंगाली में हमने सुना था, वो जल खाबो, पीने की चीज़ को भी वो खाबो बोलते हैं। बट यहाँ पर ईट का मतलब ये है कि आप अपने पानी को आस्ते आस्ते पिए, एक साथ गल्प नहीं करना है। एक साथ गल्प नहीं करने का कारण क्या है, एक साथ गल्प करने का कारण ये है, ये नहीं करना चाहिए इसलिए, आप इसको इस तरह से देखिए। अगर आपके पास एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई किसी जगह पे, तो क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, है ना। सारा पानी ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाढ़ आएगी और पानी चले जाएगा नाला, नदी और फिर समुंदर में। तो जो बारिश हुई वो पानी वेस्ट हो गया पूरा, है ना, पूरा तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया। वहीं पर अगर आप इमेजिन करें कि बारिश स्लो हो रही है, तो क्या होगा, पानी उसको पूरा, ज़मीन पूरा उसको एब्जॉर्ब करते रहेगा, है कि नहीं। ये फ़ायदे वाली बात है। उसी तरह से आपने ड्रिप इरिगेशन देखा होगा, आप एक साथ पानी डाल दो और फिर आस्ते आस्ते बूंद बूंद करके पानी डालो अपने प्लांट्स के ऊपर, तो उससे पानी भी बचता है और पानी का यूसेज भी अच्छी तरह से होता है। उसी तरह से अगर आपने पानी एक साथ पी लिया तो होगा क्या, पानी पूरा बॉडी के अंदर जाएगा और बिना एब्जॉर्ब हुए, क्योंकि एक साथ आपने ज़्यादा डाल दिया है पानी, तो बॉडी उतना एब्जॉर्ब करेगा जितना उसको चाहिए, लेकिन आपने एक साथ ज़्यादा पी लिया तो बिना अच्छे से एब्जॉर्ब हुए वो फ्लश आउट हो जाएगा, और उस प्रोसेस में वो अपने शरीर के न्यूट्रिएंट्स को भी बाहर निकाल देगा। इसलिए अपने पानी को आस्ते आस्ते पीना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आप पानी के बॉटल को अपने हैंडी रखिए, जैसा मैं रखता हूँ, 3 बॉटल दिन का भर के रख देता हूँ, और आस्ते आस्ते अगेन वही चीज़ है कि टेक सिप वर्सेस चगेंगे, एक साथ मत पीजिएगा, आस्ते आस्ते पीजिएगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खा लें,
है ना, क्योंकि उसके अंदर भी वेजिटेबल पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। जैसा मैं हूँ, मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो खाने के पहले मैं तकरीबन 200 ग्राम के आसपास या पाव किलो के आसपास तो मैं काकड़ी खा जाता हूँ, और जिसके वजह से मुझे ना खाने के टाइम पे ना खाने के बाद 1 घंटे तक प्यास लगती है, बिल्कुल नहीं। और उसका एक और फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने फाइबर अपने पेट में डाल दिया है, पानी डाल दिया है ऑलरेडी, तो मुझे भूख भी कम लगती है। मतलब खाना मैं बाकी चीज़ जो है वो कम खाता हूँ फिर उस चीज़ में। क्योंकि होता क्या मालूम है, एक चीज़ और आप समझ जाइए, समझो ये आपका स्टमक है ना, इस तरह का। ये जो ऊपर का 1 इंच का पार्ट है ना, यहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम है। जब आप खाना खा रहे हो, आपका पेट ऐसा भरते 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 ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पे टच होता है तो ये सिग्नल ब्रेन में भेजता है कि अब खाना पेट भर गया है। जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक सिग्नल नहीं जाएगा ब्रेन में कि आपका खाना से पेट भर चुका है। तो इसलिए अगर मैंने पहले ही सलाद खा के इतना पेट भर दिया, अब मेरे पास सिर्फ इतनी जगह है जो मुझे खानी है, तो इससे इस वजह से मेरा कैलोरी इंटेक भी कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एक चार्ट है जिसमें आपको यूरिन के अलग अलग कलर दिख सकते हैं, 1 से लेके 8 है, एकदम ट्रांसपेरेंट से लेके एकदम डार्क येलो तक, है ना। आप एक कलर देखिए, शुरू के 3 कलर हैं तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, आपका बॉडी हाइड्रेटेड है। लेकिन जैसे ही 4th कलर, 5th कलर, 6th, 7th, 8th पे गया तो आप समझ जाओ ये आप डिहाइड्रेशन की स्थिति में पहुंच गए हो, और जितना नीचे जाएगा उतने आपको उतने सीरियस इशू हो सकते हैं। तो इसलिए पानी पीते रहिए, कहने का मतलब ये है। आप यूरिन के कलर से चेक कर सकते हैं, इसके लिए चार्ट है। पानी के अलावा और आप क्या पी सकते हो, है ना। तो अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है, 2 अलग अलग तरह के ऑप्शन है, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। अनहेल्दी में क्या क्या आते हैं, एरिटेटेड ड्रिंक, जितने भी ये सोडा वाले, जो बबल वाले जो कोल्ड ड्रिंक है वो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी कार्बोहाइड्रेट तो सॉरी कार्बन उतने अच्छा नहीं है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आर्टिफिशियल जूस का मतलब ये है कि सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें डाला गया है और कुछ नहीं है। ओके, शराब, अल्कोहल बिल्कुल नहीं। ओके, ये तो उल्टा इफेक्ट करता है। ये उल्टा इफेक्ट क्या करता है, ये उल्टा आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। आपको तो लगता होगा कि, है ना, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 4 पैक पानी पीता हूँ तो 4-5 गिलास पानी तो ऐसे ही हो जाता है मेरा। मैं बोलता हूँ सॉरी, उल्टा आपके बॉडी से उसने उल्टा पानी कम कर दिया है। शुगरी ड्रिंक, कोई भी ठंडा आप कहीं भी पीते होंगे, है ना, जिसके अंदर शक्कर ज़्यादा है, दैट इज शुगरी ड्रिंक। हेल्थियत में अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप वो दे सकते हैं। अच्छे के अंदर आप देखा जाएगा तो आप इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, ग्रीन जूस ले सकते हैं, और फ्रूट जूस ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं और हमारी कम्युनिटी का मानना यह है कि जूस आप तभी पीजिएगा जब भी आप बीमार है ना। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, चबा सकते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, आप फ्रूट खाइएगा। ओके, ये इसका है। बाकी यहाँ पर एक 3 अलग अलग कलर में दिए गए हैं कि कौन से सबसे अच्छे हैं, कौन से सबसे अच्छे नहीं हैं। तो ग्रीन के अंदर कुछ लिखा है, उसमें वाटर है, फ्रूट इन्फ्यूज जूस है, स्किम मिल्क है, जो आपको इधर सेंटर में दिख रहा है। येलो में चॉकलेट मिल्क शेक आप ले सकते हो। मतलब ये उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एकदम बुरे भी नहीं हैं। ओके, लो कैलोरी स्पोर्ट ड्रिंक है, 100% जूस है ना। जैसे कि मैंने कहा, जूस को इसमें येलो में क्यों डाला गया, क्योंकि आप फ्रूट खाइए, ज़्यादा अच्छा है। ओके, और अनस्वीटेंड स्वीट शुगर टी, अगर आप चाय पीना चाहते हैं, चाय पीजिए बिना शक्कर का, क्योंकि शक्कर फिर आपको वापस से डिहाइड्रेट करेगा। ओके, या फिर और कैलोरी बढ़ाएगा आपकी। और जो उतने हेल्दी नहीं हैं वो तो शुगर वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक, शुगर वाले एनर्जी ड्रिंक, है ना, शुगर वाला फ्रूट जूस, है ना। कई जगह पे आप फ्रूट जूस के जो टेट्रा पैक आते हैं, वेरी डेंजरस। आप उसको पढ़िएगा पीछे, उसके अंदर पानी कितना ऐड कर दिया उन्होंने और कितना शक्कर ऐड कर दिया है। ओके, और या फिर मीठी चाय, आपको लगता है कि आप चाय पी रहे हो, पानी जा रहा है, लेकिन नहीं, वो आपको और डिहाइड्रेट कर रहा है। डिहाइड्रेशन से आपका डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया भी रुक जाती है ना। जैसे कि हमने कहा था कि सेल क्या करता है, सेल पानी भी लेता है, न्यूट्रिएंट भी लेता है, और बाकी पानी भी फेंकता है, और वेस्ट मटेरियल भी बाहर फेंकता है। लेकिन अगर आपके शरीर में पानी ही नहीं रहा तो फिर वो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं फेंकेगा, वो सिर्फ पानी लेगा और पहले बैठ जाएगा बहुत देर तक, आगे नहीं देखेगा, है ना। तो इसलिए आपको पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन का पानी कब रात को पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, है ना।
तो इसका सिंपल ये है कि रात को भी आपको पीना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। देखिए ऐसा है कि सुबह उठने से लेकर रात तक अगर आप पूछोगे कि मुझे कब कितना पानी चाहिए पीना चाहिए, तो जितना ज़्यादा पानी आप सुबह पिए और जितना सा छोटा कम पानी आप रात के टाइम पे पिए, ये ज़्यादा अच्छा है। एकदम सोने से पहले ज़्यादा पानी पीने से होगा क्या? वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम खाली एक सबसे ज़्यादा होगी, वो ये कि आपको रात को बार-बार उठना पड़ेगा यूरिनेट के लिए। उससे क्या होगा? आपकी नींद क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपकी नींद बार-बार टूटती रहेगी। तो इसलिए सोने के आधे घंटे पहले या सोने के पहले अगर आपने थोड़ा-सा पी लिया, 1, 2 या 3 घूँट, दैट्स इट, ठीक है? ताकि बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में पानी रहे जितना आपको चाहिए, बिकॉज़ आप अपने पसीना नहीं निकालना है, आपने दौड़-भाग नहीं करनी है, उतने पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके? तो इस प्रेजेंटेशन से हाइड्रेशन के ऊपर से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि आपको सुबह-सुबह पानी ज़्यादा पीना चाहिए। रेगुलरली आपको पानी पीते रहना चाहिए दिन भर, ओके? और खाने से 30 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद तक अवॉइड करना चाहिए पानी, ठीक है? और शक्कर वाले ड्रिंक या फिर अल्कोहल, दारू, इसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए और पानी को आप खाइए, जल खाबो, बंगाली लोगों का ये सेंटेंस यहाँ पर बहुत सही फिट होता है, ओके? पानी को आप खाते मतलब स्लो पीजिए, एक साथ नहीं। जैसे हम खाना कैसे आराम से चबा-चबा के खाते हैं, उस तरह से आस्ते-आस्ते पानी पीजिएगा, एक साथ पीने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो न्यूट्रिशन लॉस होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको करना क्या है? आपको शाइन करना है, और शाइन करने के लिए क्या करना है आपको? आपको हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि आपको जो मिला है बहुत बढ़िया मिला है। ऑप्टिमिस्ट रहिए। उसके बाद अपना न्यूट्रिशन आपके शरीर को अच्छी तरह से दीजिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको आपके लाइफ में क्या अचीव करना है। उसके लिए कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत होगी, आपको नई चीज़ सीखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में आज हमने बात नहीं करी, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि आज जो टॉपिक में नहीं था, एक्सरसाइज आपने डेली करना चाहिए। होप मैं बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने में सक्षम रहा। ओवर टू यू सुचिता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनोज, एंड यस, बहुत सारे पॉइंट्स बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइस हमें समझ आया है इम्पोर्टेंस, एंड देन वी आर एबल टू इम्प्लाई इट ऑन आवर डेली लाइफ्स टू गेट द बेटर रिजल्ट. With that, we come to an end of this session. You've been a great audience. Good night, and we'll see you in the next one. Thank you.